Greetings to all. Myself, Nandini Roy, Assistant Professor at ZSCDS Thakur Shyamnarayan Degree College, Thakur Complex, Kandivali. ZSCDS Thakur Shyamnarayan Degree College is always being consistent to initiate the programs for the betterment of the student, accommodations and the society as a whole. This time they have come up with an important and interesting knowledgeable session in the form of lecture series for the administrative staff of higher education institutions affiliated with the University of Mumbai. We have completed 3 sessions of the lecture series so far with an overwhelming responses. And now, glad to announce the 4th lecture with the same enthusiasm. The 4th session is on Unlock Health through Right Nutrition and Diet by well-known diabetologist Dr. Ami Sanghvi Madam. There is a highest possibility of ignoring the health concern while fulfilling personal and professional commitments, rushing to earn our bread and butter. Nowadays, we have more craving for luxurious lifestyle instead of healthy lifestyle. Many a times, due excessive work pressure, we tend to overlook the health perspective of a life which is very, very important. We eat whatever available or whatever pleases us with its taste. Sometimes we skip breakfast and lunch due to some workload, or sometimes we eat food which is not so good for our body, or some food combination which can be hazardous to us. Now this may lead to severe health issues ahead and should not be neglected. With this urge, we have to organize this lecture to help you looking after your health. For this, we have with us Dr. Ami Sanghvi. Dr. Sanghvi is a noted diabetologist and medical practitioner. She is one such example of a doctor available for her patients at every needed hour. It describes her diligencies for her work and concern for the wellness of her patient. It's our privilege to have you, Madam, for this session. On behalf of management of Thakur Shyamnarayan Degree College, I take this opportunity to thank Dr. Ami Sanghvi Madam for conducting this lecture on unlocking health. I welcome all the participants and I hope the session will really be a dose for a good health to them. As we are seeing everything is getting unlocked slowly outside, the session will be helpful to unlock the health inside. नमस्कार, मैं डॉक्टर अमी संघवी, डायबिटोलॉजिस्ट, मुंबई से। हम बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। पिछले 1.5-2 साल से जो महामारी ने हमें घेर लिया है, बहुत सारी मुसीबतों का सामना हम सब ने किया है। फिर वो चाहे मानसिक तनाव हो, आर्थिक मुसीबतें हो, हम सब ने एक कठिन समय बिताया है। बट ऐसा कहा जाता है कि हर समय हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, चाहे वो अच्छा समय हो या कठिन समय हो। वैसे ही कठिन समय ने हमें कुछ बातें अच्छी भी सिखाई है। हमें ये पता चला है, ये आवश्यक लगा है अभी कि हम अपना भी ध्यान रखना शुरू करें, अपनी भी देखभाल करें। हम जब हमारे परिवार की देखभाल करते हैं, हमारे अपनों की देखभाल करते हैं, हम खुद की भी देखभाल करें। और यही विषय में अगले 10-15 मिनट में मैं आपको थोड़ी और जानकारी देना चाहूँगी। पहली बात यह है कि हमें ये समझना चाहिए कि हर पहलू को हमें ध्यान देना चाहिए। कोई भी चीज़, अगर हमें कोई बीमारी है तो हमें उसका कैसे ध्यान रखना चाहिए। हर चीज़ अगर हम सिस्टमैटिकली इवैल्यूएट करें, हम खुद का ध्यान रखें, तो वो कठिन नहीं हो सकती है। हम जब डॉक्टर्स बात करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि हर एक बीमारी के 4 या 5 स्तंभ होते हैं। एक है कि अपने खान पान का ध्यान रखो, दूसरा है अपने एक्सरसाइज रेगुलरली, जितनी भी आपसे एक्सरसाइज हो सके आप करो। तीसरी बात है कि अगर आप कोई बीमारी से पीड़ित है
तो आप उसकी दवाई टाइम पे लो, अपने डॉक्टर को टाइम पे दिखाओ। चौथी बात ये है कि हमें जो भी बीमारी है, हमें उस बारे में थोड़ी सी जानकारी भी होनी चाहिए कि हमें उस बीमारी का इलाज अच्छी तरह से हम कैसे कर पाए। तो उस जानकारी के बारे में आप अपने डॉक्टर से पूछताछ कीजिए। और सबसे आखिरी बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी अपनी हाइजीन, अपने आप का ध्यान रखें। तो चलो हम हर बात को एक पॉइंट से कवर करने की कोशिश करते हैं। पहली बात है कि जिसका मैंने बताया आपको, डाइट मतलब खान पान। आप क्या खाते हैं, आप कैसे खाते हैं, आप कौन से समय पे खाते हैं, आपकी पोषण तत्वों की मात्रा कैसी है, हर चीज़ आपकी सेहत को उसका असर होता है। अगर आप टाइम पे खाते हैं, आप पौष्टिक आहार लेते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी सेहत अच्छी होगी। आपकी कोई बीमारी है तो आप उससे लड़ने की आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। जैसे आपको अगर डायबिटीज़ है तो आप खाने में मीठा बिल्कुल ना लें। आप चावल गेहूं का उपयोग कम करें, फल भी नाप तोल के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट डायबिटीज़ पेशेंट के लिए क्या होता है कि वो टाइम पे खाए, हर 2-3 घंटे में खाए, एक साथ में ना ज़्यादा खाए, एक साथ बड़े ब्रेक्स ना ले खाने में। और कोई बीमारी है, जैसे समझो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो आप खाने में नमक थोड़ा कम करें, आप पानी ज़्यादा पिए, आप स्ट्रेस कम लें। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है तो आप खाने में तला हुआ घी वाला कम खाएं, नॉनवेज कम खाएं। अगर आपको किडनी की बीमारी है तो अगेन आप खाने में नॉनवेज कम करें, नमक की मात्रा कम करें। अलग अलग बीमारियों में थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस आते हैं खान पान के बारे में, उसका आप ध्यान रखें। पर अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो भी अपने खान पान के बारे में ध्यान रखें, ताकि आगे जाके आपको कोई बीमारी आए नहीं। जनरली भी हमें शुगर का उपयोग, मतलब शक्कर और गुड़ का उपयोग कम करना चाहिए। जनरली हमें अपने खाने में नमक का उपयोग कम करना चाहिए। अगर हमें कोई किडनी या हार्ट की बीमारी नहीं है तो हमें पानी भी टाइम पे अच्छे से पीना चाहिए। हाइड्रेशन जिसे बोलते हैं, उससे भी हमारी सेहत अच्छी बनी रहती है। खाने में अपने प्रोटीन्स की मात्रा, मतलब दाल है, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन, मटन है, एग है, उसकी मात्रा अच्छे से हो। अपने खाने में सब्जी, सैलड अच्छी मात्रा में खाएं। आप अपने खाने में चावल या रोटी से पेट भरने की कोशिश मत करें। आप सामने सब्जी, सैलड का और दाल और करीज का प्रमाण ज़्यादा लें। खाने में तेल, घी की मात्रा कम रखें। दूसरी बात है कि कोई भी एक टाइम पे एकदम पेट भर के नहीं खाना चाहिए। हर 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए। ट्राई करें रेगुलरली आप अपने खाने में एक आध फल, दिनचर्या में एक फल इंक्लूड करें। हो सके तब तक जूसेस अवॉइड करें, फल का इस्तेमाल करें। आप अपनी दिनचर्या में अगर आपको हो सके तो थोड़ा बादाम, पिस्ता, अखरोट, नट्स जिसे बोलते हैं हम, वो आप यूज़ करें। अपने खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं, मतलब आप फ्रूट्स और सब्जी, सैलड का सेवन बढ़ाएं। इस सब से हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, हमारे विटामिन्स लेवल्स बढ़ते हैं, हम दूसरी रोगों को दूर रख सकते हैं। अगर हमें 40 के बाद कोई रोग आने वाला है तो एटलीस्ट हम उसको, अगर हमारे फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है तो हमें फुल चांसेस है आने के। पर अगर हम अपने खान पान का ध्यान रखेंगे तो हम उस बीमारी को, अगर वो 10 साल में आ रही है तो हम 20 साल में आएगी या नहीं भी आ सकती है। सेकेंड पहलू जो मैं डिस्कस कर रही थी वो है एक्सरसाइज। हम ऐसे नहीं बोल रहे कि आप रोज जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, कार्डियो करो, नहीं। अपने रूटीन में आप सिर्फ 30 से 40 मिनट का समय अपने लिए निकालें। तभी आप या तो चलने जाए, सिंपल घर पे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। अभी तो यूट्यूब है, उसके माध्यम से भी हम योगा सीख के योगा कर सकते हैं। इससे भी क्या होता है, एक्सरसाइज से हमारी सेहत बनी रहती है। हम जो खान पान में कैलोरीज लेते हैं
वो हमारी बर्नआउट होती है और वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको फिर से अगर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है तो ये भी नियंत्रण में रहता है। अगर आपको ये बीमारियां नहीं भी है पर हम इस बीमारी को दूर रख सकते हैं अगर हम अपने खान पान और एक्सरसाइज का ध्यान रखें। कोई ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं, 30 से 40 मिनट कोई भी व्यक्ति अपने पूरे दिनचर्या में से निकाल सकता है। फिर ये एक्सरसाइज में हम ये सब नहीं काउंट कर सकते कि जैसे महिलाएं बोलती है मैं भाजी लेने गई थी तो मेरा चलना हो गया, मैं दिन भर का घर पे काम करती हूँ, उसको हम एक्सरसाइज में नहीं गिन सकते। एक्सरसाइज मतलब कि आप आधा से पौना घंटा ये कोई भी रूटीन एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली करें। अगर आपको थकान लग रही है, आपको ठीक नहीं लग रहा है तो 20 मिनट करो, बट ट्राई करो कि वो 20 से 25 मिनट रेगुलरली रोज और कंटिन्यूअसली हो। दूसरा है योगा। योगा हमारी डेली रूटीन का अगर एक हिस्सा भी ले लें, एक 10-15 मिनट हम योगा कर पाए तो उससे भी काफ़ी बीमारियों को हम दूर रख सकते हैं। ये सब आदत की बात है, अगर हम उसको अपनी दिनचर्या में रोज लाने की प्रयत्न करें तो इतना कठिन नहीं है, हम उसको कर सकते हैं। सिर्फ एक डेडिकेशन चाहिए होता है हमारी तरफ से कि हम ये कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी चीज़ अगर आप 21 दिन कंटिन्यूसली करो तो उसकी एक आदत सी हो जाती है। अगर आप ट्राई करो कि योगा एक्सरसाइज आप कंटिन्यूसली 21 दिन करो तो 22वें दिन अगर आप नहीं करोगे तो आपको ही अनईजी फील होगा कि आज मैंने अपनी दिनचर्या में मैंने वॉकिंग या योगा नहीं किया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी सेहत के लिए। तीसरा जो पहलू मैं डिस्कस करना चाह रही थी ये है कि अगर आपको कोई अनफॉर्चुनेटली कोई रोग है जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है, उसे दूर मत भागिए। हम डॉक्टर्स आपकी हेल्प करने के लिए डॉक्टर्स की सलाह मानिए। अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई दवाइयाँ लेने बोली तो उसको प्लीज़ टाइम पे लीजिए। ऐसा नहीं आज ली, कल नहीं ली, परसों ली, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे भी बीमारियों के चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको डायबिटीज़ है, आप उसको नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो वो ब्लड प्रेशर को भी खींचता है, कोलेस्ट्रॉल भी को भी खींचता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स को भी ला सकता है, दूसरे अंगों को भी पकड़ सकता है। अगर आप एक चीज़ नियंत्रण में रखें तो चांसेस है कि आपको दूसरी बीमारी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आपको अगर आपके डॉक्टर ने किसी समय के बाद फॉलो अप करने बोला है तो हमारी क्या जनरल मान्यता रहती है कि डॉक्टर तो बोलते रहते हैं ये टेस्ट हम क्यों कराएं, मेरे को तो ठीक है, मैं ये ब्लड टेस्ट क्यों कराऊं या ये टेस्ट क्यों कराऊं, डॉक्टर तो बोलते रहेंगे, डॉक्टर तो बुलाते रहेंगे। नहीं, ये गलत बात है। अगर हम आपको बुलाते हैं, हम आपको जांच कराने बोलते हैं तो उसके पीछे कारण होता है, क्योंकि ये सब बीमारियां प्रोग्रेसिव बीमारियां होती हैं। अगर हम उसको स्टार्टिंग से ही ध्यान में रखें, उसको कंट्रोल में रखें तो उससे आगे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को हम रोक सकते हैं। अगर आपकी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हार्ट की दवाइयाँ चल रही है तो प्लीज़ अपनी डॉक्टर के सलाह के बगैर उसके बंद मत करें। उसे आप टाइम पे ले, उस डॉक्टर का कहना मानिए। हम यहाँ किसी का बुरा चाहने के लिए नहीं बैठे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पेशेंट्स अच्छे रहें। हम कभी अपने पेशेंट से स्टर्नली बात करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये बीमारियों से आगे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसलिए हम आपको वो बताने की कभी कभी कोशिश करना चाहते हैं कि अगर आप इसको अभी से नियंत्रण में रखेंगे तो आगे इसके जो आड़ असर दूसरे अंगों पे होते हैं उसको हम बचा सकते हैं। चौथी बात, हमने डाइट सुन लिया, हमने एक्सरसाइज का महत्व जान लिया, हमने ये भी जाना कि हमें डॉक्टर की सलाह मान के हमारी दवाइयों को टाइम पे लेना चाहिए और उसका अपनी टेस्ट करा के हर बीमारियों को कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। चौथी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जो भी बीमारी से पीड़ित है उसकी आप थोड़ी सी जानकारी लें।
ऐसे ही किसी की सलाह, फिर क्या होता है ना, जब हमें उस बारे में जानकारी नहीं होती तो हमारे डॉक्टर ने कुछ सलाह दी, फिर हम जाके और किसी से डिस्कस करते हैं, और हम ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हैं कि हर व्यक्ति का एक ओपिनियन रहता है। हमारे यहाँ हर व्यक्ति हर बीमारी के बारे में जानता है। अगर आप किसी को बोलोगे मुझे डायबिटीज है, तो वो आपको 100 सलाह दे देगा, ये मत करो, ये करो, ये तो खा सकते हो, इससे कुछ नहीं होता, ये तुम ये कर सकते हो इससे। फिर कोई नीम का पत्ता, कोई करेले का जूस, हर चीज़ बताई जाती है। हर चीज़ के बारे में जानिए। नहीं हमें समझ में आता है तो डॉक्टर से उसके बारे में पूछिए, क्योंकि हमने उस चीज़ का अभ्यास किया हुआ है, हमने उस चीज़ की जानकारी ली हुई है, तब जाके हम पेशेंट से उसका इलाज कर सकते हैं। यू व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और वो जो माहिती आती है उससे प्लीज़ भटक मत जाइएगा। कितनी सारी माहिती आती है कि हम ये बीमारी कंप्लीटली जड़ से निकाल सकते हैं या इसका इलाज हम पूरा कर सकते हैं। अगर हो सकता तो हम भी वही करते ना। फॉर एग्जांपल मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, अगर डायबिटीज़ किसी का जल मूल से निकल सकता तो मेरे दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, मैं पहले उनका निकाल देती, पर ऐसा नहीं होता है। हम उस बीमारी को नियंत्रण में रख सकते हैं। तो मेरी यही सलाह रहेगी, आप अपनी जो भी डाउट्स हो अपनी बीमारी को लेकर अपने डॉक्टर की सलाह माने, ना कि हम जब शाम को 10 लोगों के साथ बैठे और डिस्कस करें। और क्या होता है ना, हम उनकी सलाह ज़्यादा मानते हैं क्योंकि वो हमें योग्य लगती है। डॉक्टर की सलाह थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है तो हमें वो माननी नहीं होती है, बट अदर वे राउंड होना चाहिए। आपने जाके बोलना चाहिए नहीं मेरे डॉक्टर ने ऐसा बोला है और यही मुझे सही लगता है, क्योंकि डॉक्टर को इस बारे में जानकारी है। ये अगर हम करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को हम रोक सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों को आते हुए रोक सकते हैं। और अगर हमें बीमारियां हैं तो उसे दूसरे अंगों पर, जिसको हम कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, उससे हम बढ़ने से रोक सकते हैं। फिफ्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमको ये महामारी ने भी सिखाई है, खुद का ख्याल रखिए, खुद पे ध्यान दीजिए, खुद को उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितनी हम अपने लोगों को, हमारे परिवार वालों को, अपने लोगों को देते हैं। फर्स्ट इज हाइजीन, पर्सनल हाइजीन जिसे हम बोलते हैं। अपनी खुद की हाइजीन मेंटेन कीजिए, टाइम टाइम पर हाथ धोते रहिए, टाइम टाइम पर अपने आप को क्लीन रखिए। अगर आप अभी कोविड टाइम्स में बाहर जा रहे हैं तो हम हर टाइम बोलते रहते हैं हाथ धोते रहिए, हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, मास्क पहने रहिए। ये इसलिए कि आपको बीमारियों से दूर रखेगा। अपने हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बाहर से बहुत सारे कीटाणु हमारे में आके नई नई बीमारियां ला सकते हैं। आप खाना अच्छी जगह पे, साफ़ सुथरी जगह पे खाएं, पानी अच्छे से पिए, टाइम टाइम पे अपने आप को क्लीन कीजिए, नहाने का ध्यान रखिए, अपने डेंटल हाइजीन का ध्यान रखें, दांतों को साफ रखिए। छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत फ़ायदा करती है। खुद अगर हम क्लीन रहेंगे तो हम अपने घर वालों को भी प्रोत्साहित करेंगे क्लीन रहने के लिए। हम अपने बच्चों को भी वो शिक्षा देंगे कि वो भी क्लीन रहे, और ये बहुत ज़रूरी होता है। अपना ध्यान रखिए तभी हम दूसरों का ध्यान रख सकते हैं। जब हम अपना ही ध्यान अच्छे से नहीं रखेंगे तो हम दूसरों का ध्यान कैसे रख पाएंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप स्मोकिंग मतलब सिगरेट या बीड़ी फूकते हैं, या आप अल्कोहल मतलब दारू लेते हैं, तो उसको बंद कर दो। क्योंकि वो फॉर एग्जाम्पल सिगरेट के पैकेट्स पे भी लिखा रहता है कि इसे कर्क रोग होता है, इसे कैंसर होता है, फिर भी हम उस चीज़ को लेते हैं। ये जानने के बावजूद हम क्यों लेते हैं उन चीज़ को? क्यों अपनी सेहत हम जानबूझ के खराब करना चाहते हैं, जब हम उस चीज़ से दूर रख के अपनी सेहत बना सकते हैं। दारू नहीं लेके हम अपनी सेहत बना सकते हैं। हम ऐसी चीज़ों में एंजॉय करें जिससे हम अपनी सेहत बनाएं। आप रेगुलर वॉक के लिए जाएं, और दूसरी चीज़ें जो आपको पसंद है जैसे कि रीडिंग करना, गार्डनिंग करना, बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। पर इन लतों से दूर रहें, क्योंकि ये आपके शरीर को तो खोखला करता ही है, दूसरी बीमारियों को भी लाता है। कैंसर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं
और फाइनेंशियली मतलब ये सारी चीज़ें महंगी होती है और इसमें आप सिर्फ पैसे गंवाते हैं। ये सिर्फ आपको लूट रही है हर तरह से। आपके घर पे भी प्रॉब्लम्स, आपके शरीर में भी प्रॉब्लम। जब ऐसे टाइम में आमदनी की भी प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को, तो इन लतों से तो हम दूर रह के अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हम कभी डिस्कस करते भी नहीं हैं किसी के साथ, क्योंकि हमको लगता है नहीं, ये डिस्कस करना ज़रूरी भी नहीं है। पर मेरा ये संदेश रहेगा कि लेट टुडे बी द डे। आज ही वो दिन हो जिससे हम अपने आप को संभालें, जिससे हम अपने आप का ध्यान रखें। हम अपने आप का तो ध्यान रखें, पर हमारे आजू बाजू में जो है, हमारे घर वाले, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे नेबर्स, हम उनको भी प्रोत्साहित करें। चेंज हमेशा खुद से शुरू होना चाहिए। गांधी जी बोलते थे हम खुद से चेंज करते हैं। चेंज हमसे शुरू होगा तो दूसरों को भी हम वो बदलाव दिखा सकते हैं। हम घर से वो शिक्षा शुरू करेंगे, हमारे बच्चे वो ही देखेंगे। बच्चे वो देखेंगे, वो कल बड़े होंगे, वो ही हमारे सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे और वो ही आगे जाके अपने नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा सिखाएंगे। तो चेंज हम अपने आप से लाना शुरू करते हैं। छोटे छोटे कदम लेंगे, खाने पीने में ध्यान रखेंगे, पूरे दिन में अच्छे से पानी पिएंगे, आधा घंटा एक्सरसाइज करेंगे। अगर हम कोई दवाइयों पे हैं तो टाइम पे लेंगे। अगर हमारे डॉक्टर्स ने फॉलोअप पे बुलाया है तो फॉलोअप करेंगे। पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखेंगे, गंदा नहीं रहेंगे, हाथ पैर टाइम पे धोते रहेंगे, कोविड टाइम्स में मास्क पहने रहेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे। कोई भी चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पॉजिटिव सोच रखना। अगर हम कोई लत का शिकार है, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल या ड्रग्स, हम उसको छोड़ देंगे। ये छोटे छोटे कदम हमें कल बड़े रास्ते पे लेके जाएंगे। हम एक अच्छी व्यक्तित्व का तो निर्माण कर ही रहे हैं, हम घर में भी एक पॉजिटिव वातावरण का निर्माण करें, वो आगे जाके एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा देश और एक अच्छा विश्व बना सकते हैं। हमारे हाथ में है हम कितने चेंज लाना चाहते हैं। अगर हम आज से प्रयत्न करेंगे, और मुझे एटलीस्ट अगर मैं लास्ट 15-20 मिनट्स में, 15-20 मिनट में, अगर मुझे सुनने वालों में से मैं एटलीस्ट एक जन को भी प्रोत्साहित कर पाई हूँ ये सब करने के लिए, तो मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल वीडियो बनाने के लिए ही शाबाशी दूंगी कि मैंने किसी को तो एक चेंज लाने के लिए, एक बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित किया। मेरी एक विनती रहेगी आप सबसे कि खुद का ध्यान रखें, खुद के सेहत का ध्यान रखें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से बच पाए और हमारे परिवार का हम अच्छे से ध्यान रख पाए। आप सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया मेरी बातें सुनने के लिए। थैंक यू मुझे आज बुलाने के लिए, अपने थॉट्स, अपनी आइडियाज शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, खुद का ध्यान रखें, पॉजिटिव रहे और एक बेहतर जिंदगी की ओर कदम बढ़ाएं। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए होममेड सॉल्यूशंस को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ टिप्स और होम रेमेडीज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होममेड सॉल्यूशंस में फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, कहा जाता है कि एक संतुलित और सही नियम के अनुसार भोजन करने वाला व्यक्ति उम्र भर निरोगी और स्वस्थ बना रहता है। अलग अलग खाए जाने वाली चीजों से हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और हर खाए जाने वाली वस्तु हमारे शरीर पर उसकी प्रकृति के अनुसार प्रभाव डालती है। ऐसे में दो ऐसी चीजें जिनका स्वभाव और प्रकृति एक दूसरे के विपरीत यानी कि अलग अलग हो, अगर उन्हें एक के बाद एक या एक साथ मिलाकर खा लिया जाए तो उसकी वजह से हमें कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। और कुछ चीजें तो एक दूसरे के इतने विरुद्ध होती है जिनका सेवन
सेवन करने से वह हमारे शरीर में कभी भी ठीक नहीं होने वाली बीमारियों को हमेशा के लिए छोड़ जाती है। आयुर्वेद में ऐसी चीजों को विरुद्ध आहार यानी कि इनकम्पैटिबल फूड कहा जाता है। चाय के साथ बिस्किट्स और ब्रेड खाना, दूध के साथ केले या सलाद में टमाटर और खीरे का एक साथ सेवन करना, इस तरह की कई आम और रोजाना खाई जाने वाली चीजें विरुद्ध आहार की श्रेणी में ही आती है और हमें पता भी नहीं होता हमारे शरीर में हो रही छोटी से छोटी आम समस्या, चाहे वो बालों का झड़ना हो या त्वचा का खराब होना हो, दिन भर थकान या आलस आना या पेट का खराब हो जाना, ज्यादा से ज्यादा बीमारियां आजकल केवल विरुद्ध आहार की वजह से ही हो रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिन्हें एक साथ गलती से भी नहीं खाना चाहिए। विरुद्ध आहार आज हर जगह मौजूद है और इसका सेवन तेजी से बढ़ता भी जा रहा है, क्योंकि अपने स्वाद को अलग और नया बनाने के लिए बाहर के होटल और रेस्टोरेंट्स में अक्सर लोग ऐसी चीजें बनाते रहते हैं और कई बार ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होने के कारण वह खुद भी अनजाने में लगातार ऐसी चीजों का सेवन करते रहते हैं। जरा सोचिए, हमारे शरीर को सेहत बनाने वाली चीजें जैसे कि दूध, अंडा, घी, दही, पालक, करेले, बादाम और कई तरह के फल भी हमारे लिए घातक हो सकते हैं यदि उन्हें खाने के बाद या पहले ऐसी चीजें खा ली जाए जिनके साथ इनका मेल नहीं बनता हो। अगर हर तरह के प्रयास के बाद भी आपका वजन कम नहीं हो रहा है या सब कुछ खाने के बाद भी आपका वजन बढ़ता ही नहीं, अगर किसी तरह की बीमारी से आप लंबे समय से जूझ रहे हैं लेकिन वह ठीक ही नहीं हो रही, तो हो सकता है कि आप खाई जाने वाली चीजों को गलत समय पर या गलत चीजों के साथ खा रहे हो। एसिडिटी, गैस, अपचन, बालों का झड़ना, त्वचा पर एलर्जी, मस्से और सफेद दाग होना, सोराइसिस, एक्जिमा, दाद, सर्दी, जुकाम, सरदर्द और जोड़ों में दर्द होने के साथ साथ गले में खराश, फेफड़े और किडनी में कमजोरी, बवासीर, डायबिटीज तथा दिल और शरीर के दूसरे अंगों से जुड़ी कई तरह की गंभीर बीमारियां केवल विरुद्ध आहार लेने की वजह से हो सकती है। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि विरुद्ध आहार की श्रेणी में आती है और कौन सी चीजें हैं जो एक साथ खाने के लिए नहीं बनी है। इसमें सबसे पहले है दूध और दूध से बनी हुई चीजें। दूध एक एनिमल प्रोटीन है, यानी कि यह उन चीजों में से एक है जो कि हमें किसी जानवर के जरिए प्राप्त होते हैं और ऐसी सभी खाई जाने वाली चीजें जो कि हमें किसी जानवर से प्राप्त होती है जैसे कि अंडा, मांस और दूध आदि का सेवन करते समय हमें बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो कि होती तो सेहतमंद है लेकिन इनका कॉम्बिनेशन बहुत कम चीजों के साथ किया जा सकता है। दूध को कभी भी प्याज, केले, नमकीन या नमक वाली चीजें, खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, दही, मूली, कटहल, मांस, मछली और बैगन, इन सभी चीजों के पहले, बाद में या साथ में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अच्छी सेहत बनाने के लिए दूध और केले को साथ में खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन यह दोनों ही चीजें जब आपस में मिलती है तो एक दूसरे को पचने से रोकती है। दोनों के पचने का समय अलग अलग होता है, इसलिए लगातार इसका सेवन करने से हमारे शरीर की खाना पचाने की प्रक्रिया बदलने लगती है और साथ ही रात के समय ठीक से नींद न आने की समस्या भी पैदा हो सकती है। प्याज, कटहल और खट्टे फलों को दूध का दुश्मन माना जाता है। प्याज और दूध अगर हमारे पेट में एक दूसरे से मिल जाए तो इससे कई तरह के त्वचा रोग जैसे कि सोराइसिस, एक्जिमा, दाद और सफेद या काले धब्बे हो सकते हैं। और साथ ही खट्टे फल या उनके जूस का सेवन अगर दूध पीने के आसपास किया जाए तो इससे गैस, पेट में इन्फेक्शन, पेट दर्द और लूज मोशन भी हो सकते हैं। पाइनएप्पल के अंदर ब्रोमेलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि दूध के साथ मिल जाने पर हमारे शरीर पर उल्टा प्रभाव डालता है और शरीर की खाई जाने वाली चीजों से पोषक तत्व निकालने की क्षमता को कमजोर बनाता है। इसके अलावा दही के साथ केला, मांस, मछली, टमाटर और उड़द की दाल आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और साथ ही दही को कभी भी बहुत तेज आंच पर नहीं पकाएं। दही के साथ ज्यादातर फलों का मेल नहीं जम पाता है, क्योंकि ठंडा होने की वजह से इसमें फलों को डालकर खाने से यह हमारे शरीर में कफ की मात्रा को बढ़ाता है। यह कफ हमारे फेफड़ों में जमता है और हमारी शरीर की नसों में भी ब्लॉकेज कर सकता है। उड़द की दाल और दही को साथ में खाने से यह हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ा देता है। इसलिए जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें दही वड़े जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। आयुर्वेद के नजरिए से रात्रि के समय दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात के समय दही खाने से हमारे भोजन पचने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से पेट से संबंधित बीमारियां होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा बियर, कोल्ड ड्रिंक, सोडा और शराब आदि के साथ नमकीन चीजें जैसे कि मूंगफली आदि का सेवन करना सबसे ज्यादा
आम कॉम्बिनेशन बन गया है। पानी और चाय के बाद बियर दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाने वाली चीजों में तीसरे नंबर पर आती है और ज्यादातर लोगों को यह पता भी होता है कि बियर, शराब और कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन करने से हमारे शरीर का पानी सूखता है और हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। ऐसे में इसके साथ नमकीन दाने या ज्यादा नमक वाली चीजें खाने से हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगती है और बढ़ा हुआ सोडियम भी हमारे शरीर में मौजूद पानी को तेजी से खत्म करने लगता है। शरीर में पानी की कमी होने की वजह से घबराहट, चक्कर आना, पेट खराब और फूड पॉइजनिंग होने के बहुत अधिक चांस होते हैं और साथ ही लगातार ऐसा करने से पेट की चर्बी और तोंद बाहर निकलने लगती है। इसके अलावा घी भी उन चीजों में से एक है जिनका इस्तेमाल करते समय थोड़ी सावधानी बरतना आवश्यक होता है। घी को कभी भी तांबे या कॉपर के बर्तन में नहीं रखें, क्योंकि घी का तांबे के साथ मेल होने पर वह पूरी तरह से खराब हो जाता है और हमारी सेहत के लिए हानिकारक बन जाता है। इसी तरह से घी और शहद को अगर आपस में मिला दिया जाए तो इसकी तुलना जहर के बराबर की गई है और इसका सेवन करने से काफी हानिकारक परिणाम भी हो सकते हैं। सलाद में खाई जाने वाली कुछ बहुत ही साधारण चीजें भी गलत समय और गलत चीजों के साथ खाने पर विरुद्ध आहार बन सकती है। उदाहरण के लिए खीरा और टमाटर, यह दोनों ही सलाद के तौर पर खाए जाने वाली सबसे प्रचलित चीजें हैं। इसलिए हमारे घर से लेकर होटल और शादियों में भी खीरे और टमाटर को साथ में दिया जाता है। लेकिन हाल ही में की गई एक रिसर्च के मुताबिक खीरे और टमाटर में पाए जाने वाले तत्व एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। साथ ही इन दोनों के पचने का समय भी अलग अलग होता है, जो कि हमारे पेट को कंफ्यूज करता है। इसलिए अगर इन दोनों को साथ में खाया जाए तो इन दोनों से मिलने वाले जरूरी पोषक तत्व तो हमें नहीं मिलते, बल्कि इसकी वजह से पेट भारी होने और पेट फूलने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि टमाटर और खीरे को एक साथ न खाएं। कई लोग सलाद का सेवन खाना खाने के बाद करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि सलाद ठंडा होने की वजह से भोजन के साथ ही खाना जरूरी है। भोजन कर लेने के बाद सलाद खाने से खाना पचने की गति धीमी हो जाती है, जिससे कि गैस और एसिडिटी हो सकती है। अगर आप सलाद में गाजर खाते हैं तो उसके साथ नींबू का सेवन न करें, क्योंकि गाजर में नींबू का रस डालकर खाने से हार्ट बर्न और यूरिन यानी कि पेशाब से संबंधित बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। सलाद में मूली शामिल होने पर इसे खाने के बाद दूध या केले का सेवन न करें। दूध की तरह ही शहद भी एक ऐसी चीज है जो कि हमें किसी जीव के जरिए प्राप्त होती है। शहद का सेवन घी, मूली और अंगूर जैसे फलों के साथ न करें और इसे ऐसी चीजों में कभी मिक्स न करें जिसे पकाया जा रहा हो या गर्म किया जा रहा हो, क्योंकि शहद पकने के बाद हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है। कहा जाता है कि शाकाहारी लोगों के मुकाबले मांसाहारी लोगों के शरीर में ज्यादा बीमारियां होती है, लेकिन केवल मांस आदि का सेवन करने से बीमारियां उत्पन्न नहीं होती, बल्कि जब इसे गलत समय पर या गलत चीजों के साथ खा लिया जाता है तभी इससे कोई बीमारी पैदा होती है। मछली, अंडा और मांस आदि के साथ दूध, दही, चीज, अंकुरित आहार, आलू तथा स्टार्च वाली चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए और किसी भी तरह के मांस को कभी भी तिल के तेल में नहीं पकाना चाहिए। बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन फूड के साथ आलू और मैदे से बनी चीजें खाना पसंद करते हैं। होटलों में मिलने वाली तरह तरह की रोटियां और रेस्टोरेंट में मिलने वाले बर्गर मांसाहारी चीजों के साथ आलू तथा मैदे से बनी हुई चीजें खाने की सबसे आम जगह बन गई है। खाने में चाहे इनका स्वाद बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन इन दोनों को साथ में मिला देने से यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक बन जाते हैं, क्योंकि आलू और मैदे के अंदर स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। स्टार्च को पचाने के लिए हमारे पेट को अल्कलेटिक यानी कि क्षारीयता की जरूरत होती है और वहीं दूसरी तरफ मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने के लिए हमारे शरीर को एसिडिक यानी कि अम्लीयता की जरूरत पड़ती है। दोनों को साथ में खाने से इसमें मौजूद प्रोटीन तो हमारे शरीर में पूरी तरह नहीं पहुंच पाता और मोटापा, गैस तथा शुगर और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगती है, जो कि डायबिटीज और दिल से संबंधित बीमारियों को जन्म देती है। जब भी आप भोजन करें तो भोजन करने के साथ साथ या भोजन करने के तुरंत बाद ठंडी चीजें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम या बहुत ज्यादा गर्म चीजें जैसे कि चाय या कॉफी का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि ऐसा करने से भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व तो खत्म होते ही है और खाना भी ठीक तरह से नहीं पच पाता है। कभी भी चाय और कॉफी जैसी गर्म तासीर वाली चीजों का सेवन करने के बाद ठंडा पानी, खट्टे और पानी वाले फलों का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि ऐसा करने से गले का इन्फेक्शन और सर्दी खांसी होने की संभावना बढ़ जाती है। विरुद्ध आहार के अलावा कई सारी चीजें ऐसी भी होती है जिन्हें केवल अकेले खाने से भी वह हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकती है। वह चीजें कौन सी है, उन्हें जानने के लिए हमारे चैनल पर पहले से ही वीडियो मौजूद है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आज के यह वीडियो आपको
आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो, और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।